My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be doing questions from previous years from SSG board examination from the topic of divisibility and factors. Start करते हैं session को, and if you've not already subscribed to our channel, then subscribe to our channel as well as press the bell icon. So basically, if there is a number n, and if you factorize it in terms of prime numbers, prime factorization करें, and if n is some prime number 1 to the power a into prime number 2 to the power b into prime number 3 to the power c and so on. If this is the value of n, then number of factors of a or number of factors of n will be equal to a plus 1 into b plus 1 into c plus 1. And if the question is asking about the sum of factors, so sum of factors will be p1 to the power a है, so p1 to the power 0 plus p1 to the power 1 plus p1 to the power 2 till prime number 1 to the power a into prime number 2 to the power 0 plus prime number 2 to the power 1 till prime number 2 to the power b into prime number 3 to the power 0 into prime number 3 to the power 1 plus till prime number 3 to the power c. This will be sum of factors. Okay, clear? So first question is find the number of divisors of 45,000. और divisors और factors both are one and the same things. Divisors यानी कि जो divide करें, factors यानी कि basically factors always exist in pairs for any number. ठीक है, factors हमेशा pair में exist करेंगे because किसी number को form करने के लिए, for example, if the number is 60, then we can write 60 as 1 into 60, or 2 into 30, or 3 into 20, 4 into 15, 6 into 10. So all these values are factors. Total 10 factors are there, and we need exactly 2 factors, complementary factors, जिनका product हमारा equal to 60 होगा. So factors always exist in pairs. Okay. So number of divisors or factors of 45,000. So to find out number of divisors, we need to factorize in terms of prime numbers 45,000 को. 45,000 is 45 into 1,000. 45 is 9 into 5 यानी कि 3 square into 5 to the power 1 और 1000 हो गया 10 cube, which is 2 cube into 5 cube. So basically this number is 2 cube into 3 square into 5 to the power 4. 2 is the first prime number, 3 second and 5 third. Number of factors will be equal to power क्या है 3 plus 1 into 2 plus 1 into 4 plus 1, which is 4 into 3 into 5, hence 60 factors in total are there. Option A will be the answer. Okay, clear है? अगर सम ऑफ फैक्टर्स पूछा होता, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो वैल्यू क्या होता हमारा? सम ऑफ फैक्टर्स वुड हैव बीन 2 to the power 3 है तो 2 to the power 0 plus 2 to the power 1 plus 2 square plus 2 cube into 3 to the power 0 plus 3 to the power 1 plus 3 square into 5 to the power 0 plus 5 to the power 1 plus 5 square plus 5 cube plus 5 to the power 4. अब 2 to the power 0 से 2 to the power 3 क्या होगा? This will be 2 to the power 4 minus 1 यानी 15 into 1 plus 3 plus 9, which is 13, plus 5 to the power 0 से 5 to the power 4 तक. 5 to the power 4 is 625 plus 125 हो जाएगा 750 plus 25 775 780 781. So this will be sum of factors. Okay. Next question. The sum of reciprocals of the positive divisors of 120. Sum of reciprocals of positive divisors. Okay. So as we have discussed, कि always factors exist in pairs. So for example, 120 can be written as 1 into 120. हमें चाहिए sum of reciprocals. Okay. So reciprocals क्या होंगे? For example, 1 by 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4 plus 1 by 5 plus 1 by 6 and so on. So all the factors still 1 by 120. अब अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम तो हमारा क्या आएगा? द ओरिजिनल नंबर जिसका हमने फैक्टर्स निकाले हैं, तो 120 विल बी एलसीएम. और न्यूमरेटर वैल्यूज क्या आएगा? सिंस 120 इज इक्वल टू 1 into 120, तो 1 by 1 में जैसे ही एलसीएम ने 120 लिया, वैल्यू आ जाएगा 120 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 30, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है हमारा फैक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर है, वही वैल्यू आ रहा है न्यूमरेटर में, इजंट इट सो? एंड सो ऑन. और लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में आएगा 1. So basically numerator is sum of factors, sum of all the factors and divided by the number itself.
So sum of reciprocals is equal to sum of all the factors divided by that number itself. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? सो आवर आंसर विल बी इक्वल टू 120 क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 120 का, 120 इज 8 into 15. सो बेसिकली दिस इज 2 to the power 3 into 3 to the power 1 into 5 to the power 1. तो सम ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा हमारा 15 1 plus 2 plus 4 plus 8 15 into 1 plus 3 4 into 1 plus 5 6 divided by 120. So 15 by 5 answer will be 3. Sum of all the reciprocals will be equal to 3. Option B आंसर हो जाएगा. ओके ओके क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. If 2 to the power 36 minus 1 is equal to 68A 194 76735 when all the digits are correct except A, तो करेक्ट वैल्यू पे क्या होगा? अब ऐसे क्वेश्चन में जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में देखने को मिलता है तो कुछ ना कुछ कहीं पे पिक होगा, कहीं पे हिंट होगा जहां से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है. ठीक है, 2 to the power 36 minus 1 है. अब इतना लंबा सा नंबर है, डेफिनेटली हम वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे 2 to the power 36 का, बहुत लंबा वैल्यू आएगा. कर तो सकते हो क्योंकि वी नो 2 to the power 10 is equal to 1024, 2 to the power 12 is equal to 4096. तो बेसिकली 2 to the power 36 क्या हुआ? 2 to the power 12 का होल क्यूब, यानी कि 4096 का होल क्यूब. बट जितना लंबा ये वैल्यू आने वाला है इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट ही करते रह जाओगे और कोई इसका सेंस बनता नहीं है. कैसे अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन को? अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए? वी नीड द वैल्यू ऑफ ए. बाकी सारी डिजिट्स हमको पता है, ठीक है, बाकी सारी डिजिट्स हमको पता है, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो 2 to the power 36 minus 1 है. क्या हम इसको 9 से कनेक्ट कर सकते हैं? 9 से कनेक्ट करने के बारे में क्यों सोच सकते हैं? बिकॉज 9 से कनेक्ट करने पे हमें डिजिटल सम जो है वो मिल सकता है. ठीक है, इफ दिस नंबर कम्स आउट टू बी डिविजिबल बाय 9, 2 to the power 36 minus 1, if this comes out to be divisible by 9, in that case जो डिजिटल सम हमारा होगा that will also be divisible by 9. That will also be divisible by 9. अगर ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा, लेट अस से 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 देगा, तो डिजिटल सम भी हमारा 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 देगा. दैट इज व्हाई वी शुड बी कनेक्टिंग दिस नंबर विद 9. अगर 9 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर हमें मिल जा रहा है, सो इन दैट केस हम बस इतना करेंगे कि डिजिटल सम को भी हमें उसी से कनेक्ट करना है, उसी नंबर से कनेक्ट करना है. ठीक है, सो 2 to the power 36 minus 1 in general if you have a number a to the power n minus b to the power n, so this is divisible by a minus b if n is odd, and this is divisible by a minus b and a plus b if n is even. So in this case 2 to the power 36 है, so we can write this as 2 to the power 36 minus 1 to the power 36. So this is divisible by 2 minus 1 and 2 plus 1, or we can say this is divisible by 2 to the power 18. अगर a square minus b square के टर्म्स में देखें तो minus 1 into 2 to the power 18 plus 1. अगर फैक्टराइज करते हैं तो देन आप इसको देखो a square minus b square के टर्म्स में, so this will be 2 to the power 9 minus 1 into 2 to the power 9 plus 1 into 2 to the power 18 plus 1. और 2 to the power 9 minus 1 को a क्यूब माइनस b क्यूब के टर्म्स में देखो, so this will be a minus b. ठीक है, a माइनस b 2 क्यूब माइनस 1. एक सेकंड, यहां से अपना काम बनेगा. 2 क्यूब माइनस 1 हो गया, ठीक है, और फिर बचेगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 into 2 क्यूब, so that will be 16 into 2 to the power 9 plus 1 into 2 to the power 18 plus 1. तो ये टर्म हमारा क्या है? दिस इज 64 plus 16 plus 1 which is 81, which is divisible by 9. 9 से divisible आ रहा है, isn't it so? क्या क्लियर है? ठीक है, बट इसके लिए हमें लंबा प्रोसेस करना पड़ा. इन शॉर्ट अगर हम इस नंबर को देखते हैं 2 to the power 36 minus 1 को देखते हैं और कहते हैं कि दिस नंबर इज बेसिकली, क्योंकि हमें कनेक्ट करना है 9 से, और 9 क्या होगा? बेसिकली 2 क्यूब प्लस 1. सो वी कैन राइट दिस एज 2 to the power 3 to the power 12 minus 1, और 1 की तो कुछ भी पावर लिख सकते हो, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 to the power 12. एंड एज पर द रूल a to the power n minus b to the power n is divisible by a plus b if n is even. तो n यानी कि पावर हमारा इवन आ रहा है इस केस में, क्योंकि पावर हमने 12 कर दिया है, पावर इवन आ रहा है, यानी कि दिस विल बी डिविजिबल बाय 2 क्यूब प्लस 1.
ए प्लस बी विच इज इक्वल टू 9, यानी कि नंबर हमारा 9 से डिविजिबल होना चाहिए. सो दिस नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9. 9 से डिवाइड करने के सम ऑफ डिजिट्स कर लो. 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 1 15, 9 तो कैंसिल आउट कर दो. जहां जहां पे सम 9 आ रहा है 9, 6 प्लस 3 9, ठीक है. 5 प्लस 4 9, बच जा रहा है फिर 8 प्लस 1 9, ये भी कैंसिल आउट हो गया. फिर बच गया 7 प्लस 6 प्लस 7, 14 प्लस 6 20. तो a प्लस 20, दिस शुड ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 9, विच विल बी डिविजिबल बाई 9 when a is equal to 7, and hence a must be equal to 7. Option C will be the answer. That correct value of a is equal to 7. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अदरवाइज इसको ऐसे भी देख तो सकते ही थे कि हम स्ट्रेट अवे लिखते हैं इसको कि 2 टू पावर 36 है 2 क्यूब टू द पावर 12 माइनस 1. ओके, और 2 क्यूब टू द पावर 12 करो यानी कि विच इज 8 टू द पावर 12 माइनस 1. वही सेम चीज जो हमने ऊपर लिखा है, बट इसको ऐसे भी देख सकते थे कि 8 टू द पावर 12 है और 8 को डिवाइड करोगे 9 से तो रिमाइंडर हमें गिवन होगा 1 मिलेगा, माइनस 1 मिलेगा या फिर 8 मिलेगा. सो बेसिकली 8 टू द पावर 12 माइनस 1 दिस डिवाइडेड बाय 9 गिव्स अस रिमाइंडर. क्या यहां से हमें रिमाइंडर मिलेगा -1 टू द पावर 12 माइनस 1. सो रिमाइंडर विल बी -1 टू द पावर 12, तो 1 ही आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर हमें 0 मिल जाएगा. सो ऐसे भी स्ट्रेट अवे देख सकते थे. ठीक है, बट ये रूल डेफिनेटली प्रैक्टिस करना है बिकॉज इस पर बार बार क्वेश्चन आए हैं. अभी देखेंगे भी हम कोई क्वेश्चन बाद में. ओके, नेक्स्ट वन. What is the least square number which is divisible by 3, 5, 6 and 9? Smallest perfect square number that is divisible by 3, 5, 6 and 9. 3 से divisible हो, 5 से हो, 6 से हो, 9 से हो, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, यानी कि पावर सारी की सारी इवन होनी चाहिए प्राइम नंबर्स की. ठीक है, 3 से divisible यानी कि 3 के स्क्वायर से divisible होना चाहिए. 5 से divisible है यानी कि 5 के स्क्वायर से divisible होना चाहिए. 6 से divisible है तो 6 के स्क्वायर से होना चाहिए, बट 3 स्क्वायर ऑलरेडी हम कंसीडर कर चुके हैं तो 2 के स्क्वायर से divisible होना चाहिए. और 9 से तो है ही जब 3 के स्क्वायर से है, तो दिस मस्ट बी द स्मॉलेस्ट सच नंबर. 3 into 5 into 2 is 30, square is 900. The smallest such number will be 900. Okay. Next question. Find the smallest number of 5 digits exactly divisible by 6, 7, 8, 9 and 12. Smallest number of 5 digits exactly divisible by 6, 7, 9 and 12. तो अगर exactly divisible होना है और smallest 5 digit number होना है तो that number must be divisible by LCM of all these numbers. So first step, LCM of 6, 7, 8, 9 and 12. क्या है एलसीएम? एलसीएम विल बी 8 into 9 into 7, 72 into 7, तो 70 into 7 490, 504. So our number should be a multiple of 504 और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होना है तो इसके करीब तक पहुंचना है. 5 डिजिट नंबर बनाना है अगर हमको, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विल बी 1 फॉलोड बाय 4 zeros. तो इफ यू मल्टीप्लाई 504, ठीक है, लेटेस्ट हमने कर दिया 504 के बाद में 1 0 बढ़ा दो तो 5040 हो गया. डबल कर दोगे तो दिस नंबर विल बी 10080, यानी कि बेसिकली 20 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर मिल गया हमको 10080. और दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि अब हमें नेक्स्ट नंबर क्या होगा, हमारा जो जनरलाइज्ड नंबर होगा दैट विल बी 504 का मल्टीपल. सो 10080 इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, क्योंकि इसमें और तुम 504 सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर हमारा नंबर 4 डिजिट नंबर हो जाएगा. सो दिस विल बी स्मॉलेस्ट सच नंबर. अगर हमें लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालना होता है, जस्ट इन केस अगर हमें चाहिए होता लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो हम क्या करते, फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको. ठीक है, यहां तो आंसर मिल गया हमको, बट अगर लार्जेस्ट चाहिए होता तो 100,800 हो गया हमारा 6 डिजिट नंबर. लेकिन हमें चाहिए लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करो. कितना सब्ट्रैक्ट करोगे? अगर सिर्फ 504 सब्ट्रैक्ट करोगे तब तो 6 डिजिट नंबर ही रहेगा, तो -1008, डबल ऑफ 504 सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमें नंबर मिल जाएगा. ठीक है, 800 सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा 1 फॉलोड बाय 5 zeros, तो 208 और सब्ट्रैक्ट करोगे सो 208 और सब्ट्रैक्ट होगा तो 99792. दिस विल बी अवर लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर. क्लियर है? ठीक है, दिस विल बी लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर. बाकी अदरवाइज कन्वेंशनली करना चाहते हो तो फिर 504 से डिवाइड करोगे तो 10,000 को, रिमाइंडर जितना बचेगा वो देखोगे और फिर बचा हुआ पार्ट को ऐड करोगे. बट वैसे करने से बेटर है कि अप्रोच से अप्रोक्सीमेट करके चीज़ों को डायरेक्शन में लेके जाओ. ओके,
Next question. Some boys decided to go on a kabaddi tournament winning treat and planned to spend rupees 96 on refreshments. Four of them, however, refused to join the treat. As a result, the remaining ones had to contribute rupees 4 extra each. तो पहले कुछ बच्चों ने ज्वाइन करने का प्लान किया, बट 4 of them refused to join the treat, और उसकी वजह से बचे हुए बच्चों को 4 rupees एक्स्ट्रा पे करना पड़ा. So what is the number of boys who attended this treat? Total amount that was to be paid is 96. So 96 can be made with 16 into 6 हो सकता है, और 12 into 8 हो सकता है. अब 16 से 12 पे आ रहा है तो 4 का रिडक्शन हो रहा है, बट यहाँ पे हमारा इंक्रीज सिर्फ 2 का हो रहा है. ठीक है, 12 into 8 को 8 into 12 बना सकते हो, बिकॉज यहाँ पे 4 रिडक्शन हुआ और यहाँ पे 4 का इंक्रीज हुआ, जो कि क्वेश्चन कह रहा है. ठीक है, तो इनिशियली अगर नंबर हमारा 12 into 8 रहा होगा, यानी कि 8 रुपीज ईच, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर 12 था, 8 रुपीज ईच एक्सपेंडिचर था, तो 12 से हो गया 8, और पर हेड एक्सपेंडिचर हो गया 12 रुपीज प्लस 4. तो यही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रहा है. क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज हु अटेंडेड दिस ट्रीट. हु अटेंडेड, तो अटेंड कितनों ने किया है? 8 ने किया है. इनिशियली प्लान कितनों ने किया था? 12 ने किया था. आंसर विल बी 8, ऑप्शन सी. ओके. What must be added to 315654 so that it becomes a multiple of 11? What must be added to 315654 so that it becomes a multiple of 11? So देख लेते हैं रिमाइंडर कितना बच रहा है और फिर उसके अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे. 315654, 11 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे? ऑड नंबर्स का, ऑड डिजिट्स का सम और इवन डिजिट्स का सम सेपरेटली करोगे, और सबसे पहले करोगे ऑड डिजिट्स का सम, तभी रिमाइंडर मिलेगा तुमको. तो 4 + 6 + 1 दैट इज 11 माइनस 5 + 5 + 3 13. सो रिमाइंडर इज -2. नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है -2. ठीक है, तो रिमाइंडर -2 है, +2 और ऐड कर दोगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और रिमाइंडर 0 हो गया तो नंबर डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि 2 मस्ट बी एडेड. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. ऑर्डर जरूर ध्यान रखना है कि पहले ऑड डिजिट्स का सम करोगे, उसमें से इवन डिजिट्स का सम सबट्रैक्ट करोगे. ओके, क्लियर? और -2 नेगेटिव रिमाइंडर आया था, तो अगर पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए होता तो 11 ऐड कर देते, तो हमें पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाता, दैट विल बी इक्वल टू 9. नेक्स्ट क्वेश्चन. The least perfect square that is divisible by each of 321, 48 and 66. Least perfect square that is divisible by each of 321, 48 and 66. थ्री 21 को फैक्टराइज करो, 3 से मल्टीपल है तो 3 into 107 हो रहा है, एंड 107 तो एक प्राइम नंबर है, तो 107 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का होना चाहिए, और परफेक्ट स्क्वायर है तो इवन पावर होगा. 107 एक प्राइम नंबर है तो 107 के स्क्वायर से डिविजिबल होना चाहिए, और 3 के बेस स्क्वायर से. 48 is 3 into 16. 16 itself is a perfect square. 2 to the power 4 है तो 2 to the power 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए. 66 हमारा क्या है? दिस इज 2 into 3 into 11, तो 11 के स्क्वायर से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो दिस शुड बी आवर नंबर. बट जो गिवन नंबर्स है वहां पे थोड़ा अलग तरह से लिखी हुई चीज है, तो हमें 107 का स्क्वायर पहले निकालना पड़ेगा. 107 into 107 क्या होगा? 107 into 107, दिस विल बी 11449. 11449. ओके, सो 11449 तो है ये पार्ट ऑफ द आंसर, मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर विच इज 9 इंटू 2 पावर 4 16 इंटू 11 स्क्वायर 121. सो 9 इंटू 121 कितना आएगा? दिस वैल्यू विल बी 1089. तो 1089 इंटू 16 इंटू 1149, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा. Option B, 16 into 1089 into 11449. This will be our answer. Okay. Next question. A number 1 plus 7 to the power 47 is divisible by x. Which of the following is also divisible by x? 1 plus 7 to the power 47 तो divisible by x है. So which is also divisible by x? So if a to the power n plus b to the power n है, if n is even, तब तो कुछ भी नहीं कह सकते किस नंबर से डिविजिबल होगा. बट इफ n इज ऑड, इन दैट केस दिस इज डिविजिबल बाई a प्लस b. डिविजिबल बाई a प्लस b, और वही सिनेरियो बन रहा है यहाँ पे. तो 1 प्लस 7 टू द पावर 47 है, तो अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो a क्यूब प्लस b क्यूब अगर हमारा नंबर बन जाए, तो दैट विल बी डिविजिबल बाई a प्लस b, बिकॉज क्वेश्चन जो हमें ऑप्शंस दिए इसी फॉर्मेट में कुछ. ठीक है, सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कर दें, सो दैट विल बी ए क्यूब यानी 1 का क्यूब 1 क्यूब प्लस 7 टू द पावर 47 होल क्यूब.
So this will be 1 plus 7 to the power 141. This will be divisible by 1 plus 7 to the power 47, यानी कि ऑप्शन बी आंसर होगा। या फिर 8 to the power 5 plus b to the power 5 भी बन सकता था, और वो हो जाता हमारा 1 plus 7 to the power 235। ये भी डिविजिबल होगा 1 plus 7 to the power 47 से। बेसिकली एनी ऑड पावर विल बी डिविजिबल, इवन पावर के बारे में नहीं कह सकते, ठीक है। वो किसी नंबर से डिविजिबल होगा, किससे नहीं होगा, उसके लिए डायरेक्टली कोई रूल नहीं है हमारे पास, बट ऑड पावर्स के लिए फॉर श्योर है। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी इन दिस केस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। देखो सेम रूल पे 2024 में हमारे 2 क्वेश्चन आए स्ट्रेट अवे, और इसमें तो काफी सारे टेस्ट हो रहे हैं। 4 स्टेटमेंट्स है और चारों के चारों स्टेटमेंट्स को हमें चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट 4 to the power 10 plus 6 to the power 10, दिस इज डिविजिबल बाय 52। टेस्ट करना है 52 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। और 52 बेसिकली है, दिस इज 4 into 13, 4 into 13, सो 4 to the power 10 plus 6 to the power 10। अब दोनों ही में हमारा 2 तो आ ही रहा है, तो 4 to the power 10 कैन बी रिजल्ट 2 to the power 10 into 2 to the power 10 प्लस 6 to the power 10 क्या है, 2 to the power 10 into 3 to the power 10। 2 to the power 10 को ले लिया कॉमन, तो इनसाइड द ब्रैकेट विल बी 2 to the power 10 प्लस 3 to the power 10। और सिंस 52 क्या है, 4 into 13, 2 to the power 10 तो हमारा 2 का मल्टीपल है, तो दिस इज डिविजिबल बाय 4। 4 से तो ये पार्ट डिविजिबल आ रहा है। अब इस पार्ट को चेक करते हैं वेदर दिस इज डिविजिबल बाय 13 और नॉट, क्योंकि 13 से तो नहीं है 2 to the power 10 डिविजिबल, 4 से पक्का है। तो 2 to the power 10 प्लस 3 to the power 10, और 13 बनाना है हमको, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 13। 4 प्लस 9 इज 13। तो अगर तुम यहां पे देख पा रहे हो, दिस नंबर इज बेसिकली 2 स्क्वायर टू द पावर 5 प्लस 3 स्क्वायर टू द पावर 5, यानी ऑड पावर्स है। तो दिस इज डिविजिबल बाई 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डिविजिबल बाई 13। 13 से डिविजिबल है सेकंड वाला, सेकंड हाफ, और फर्स्ट हाफ में हमारा 4 से डिविजिबल है, यानी कि पूरा नंबर हमारा 13 से डिविजिबल है। दैट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। क्या क्लियर है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, अब सबसे पहला काम क्या है, पावर्स को करोगे इक्वल। 7 to the power 15 है, 64 to the power 5 है, तो 7 to the power भी 5 में लेके आओ, पावर वहां पे भी 5 लेके आओ, ठीक है। या फिर 64 to the power 5 है, तो उसकी पावर को इक्विवेलेंट करके देखो, पॉसिबल हो तो, ओके। तो 2 तरीके बनते हैं यहाँ पे हमारे, 7 to the power 15 प्लस 64 to the power 5। पहला तरीका ये है कि 7 क्यूब टू द पावर 5 कर दो, 7 क्यूब है 343, तो 343 टू द पावर 5 प्लस 64 टू द पावर 5, ऑड पावर है तो ये डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई 343 प्लस 64, दैट विल बी 407। और 407 क्या है, 11 से डिविजिबल आ रहा है, 4 प्लस 7 11, 11 से डिविजिबल है, दिस इज 11 इंटू 37, तो डिविजिबल बाई 11 आ रहा है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। या सेकंड अप्रोच ये हो सकता था लिखने का कि हम करते हैं 7 to the power 15 है, 64 क्या है, 64 is 2 to the power 6, तो 2 to the power 30 हो रहा है, तो बेसिकली दिस विल बी 7 to the power 15 प्लस 2 स्क्वायर, यानी 4 to the power 15, सो डिविजिबल बाय 7 प्लस 4 11। किसी भी तरह से देख लो, तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन सी तो आंसर नहीं है, पक्की बात है। थर्ड को चेक करते हैं, 2 to the power 20 minus 49 to the power 10 is divisible by 9। 2 to the power 20 minus 49 to the power 10, अगेन यहाँ पे पावर्स को इक्वल करोगे, 2 to the power 20 can be written as 4 to the power 10 minus 49 to the power 10। अब क्योंकि a to the power n minus b to the power n है, पावर n इवन है, n अगर इवन है तो दिस विल बी डिविजिबल बाई a plus b as well as a minus b, दोनों से डिविजिबल होगा, तो दिस विल बी डिविजिबल बाई 4 plus 49 which is 53 as well as 4 minus 49 which will be minus 45, यानी 45 से भी डिविजिबल होगा, और 45 9 का मल्टीपल है तो 9 से भी डिविजिबल होगा। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, ठीक है, क्लियर है। और या फिर ऐसे लिखते हैं इसको कि दिस इज आल्सो इक्वल टू 2 to the power 20 minus 7 to the power 20, तो डिविजिबल बाई 2 plus 7 which is 9 and 2 minus 7 which is 5, तो 9 और 5 दोनों से डिविजिबल है। थर्ड भी करेक्ट है। फोर्थ के बारे में बात करें, 3 to the power 15 minus 8 to the power 5 डिविजिबल बाई 5, क्या ये होगा कि नहीं होगा। 3 to the power 15 minus 8 to the power 5, तो दिस विल बिकम 3 to the power 15 minus 2 to the power 15, 2 क्यूब है 8, तो 2 to the power 15
a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, बट ये यहाँ पे हमारा n क्या है, ऑड है, और जब n ऑड होगा तो दिस विल बी डिविजिबल बाई a माइनस b, a माइनस b से डिविजिबल होगा, यानी कि दिस विल बी डिविजिबल बाई 3 माइनस 2, बट 3 प्लस 2 से डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाई 3 प्लस 2। ओके, मतलब स्ट्रेट अवे नहीं कह सकते 3 प्लस 2 से डिविजिबल होगा, होने को हो सकता है बट बाय रूल नहीं कह सकते। तो कैसे चेक करेंगे यहाँ पे, तो चेक करने का तरीका ये है, डिजिट्स देख लो, यूनिट डिजिट देख लो, बिकॉज अगर 5 से डिविजिबल होना है तो यूनिट डिजिट शुड बी इधर 0 और 5, ठीक है। तो 2 पावर 15 बेसिकली यूनिट डिजिट यहां पे क्या आने वाला है, यूनिट डिजिट के लिए क्या करेंगे, 4 के 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखो, तो यूनिट डिजिट वही सेम होगा जो कि 3 क्यूब में होगा। सिमिलरली यूनिट डिजिट यहां पे वही होगा जो कि 2 क्यूब में होगा, 3 क्यूब में यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 होगा, 2 क्यूब में यूनिट डिजिट 8 होगा, और दिस नंबर माइनस दिस नंबर, यानी 7 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा, -1 आएगा। बट बेसिकली हमारा यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, 7 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे, सब क्योंकि हमारे बड़े नंबर में से छोटा सब्ट्रैक्ट करने वाले हो, तो अगर लेट्स से दिस नंबर 17 माइनस 8 यानी कि 9 हो जाएगा। यूनिट डिजिट पे हमें वैल्यू मिलेगा 9, और क्योंकि 9 आ रहा है यूनिट डिजिट पे, तो फिर ये नंबर हमारा 5 से डिविजिबल नहीं होगा, ये बात पक्की है। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट बट फोर्थ इज इनकरेक्ट। ओके, क्लियर है? Okay. So these were all the questions related with divisibility and factors in this session. I believe जो भी questions जैसे वो समझ आए होंगे, and if you like this session then make sure to hit the like button as well. That's all for this session. Bye bye, take care and keep learning.